So, very good morning and welcome. I'm Dr. Himanshu Mathur on behalf of Jaipur Rehab Online Education. I welcome our guest speaker of the day, Dr. Zalak. Ma'am will be talking about mental health, a perspective of a physiotherapist. Let me introduce you with ma'am before we start with our venture of the day. So, ma'am is currently working as a physiotherapist and a fitness instructor. Ma'am is a well-renowned speaker in the field of fitness and, of course, mental health and physiotherapy. So, ma'am has been practicing in Ahmedabad at her own clinic that is known as BFit Health Studio, and which is located in Ahmedabad. Right. So, Yeah. ma'am, before we start this journey of questions and answers with you, I would like to have a few words of starting from you. Yes. Thank you. First of all, thank you so much, Himanshu, for inviting me. I have seen many of your videos in our YouTube channels, and you are doing actually very well job for starting there's a online the education program. It is very helpful, and I'm very grateful to join this. Yeah, so today we are going to speak about the mental health, which is a, if you have seen the recent scenario, mein, it is a very you can say hot topic अभी बन गया है because of the corona, because of the many of the issues हमारे अगर हम young generation में जाए तो उसी के में भी अभी जो है mental health is a very uh, you can say very commonly seen. So yes, I would like to share my bit of knowledge with everyone. So hope that helpful. Okay. So, Yeah. before we start, before we get on to various things related to mental health, let us first introduce what actually mental health is. How do we define it to layman people? And okay, before we go, I would just like you to throw some light on what is actually mental health. Yes. So see, basically, if you can say mental health in general term, so we have many of the scene. हमने बहुत सारी बार देखा है कि हमारे घर में भी जो हमारे सराउंडिंग्स है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनको भी छोटी छोटी बात की एंग्जाइटी, जैसे बोलते हैं डर रहता है या फिर टेंशन रहता है, तो वो कंटिन्यूअसली उनको एक ट्रिगर करता रहता है. देर आर मेनी ऑफ रीजन बिहाइंड इट कि अगर हम देखें तो किसी को खुद के प्रोफेशन के लिए रहता है, प्रोफेशन खुद के प्रोफेशन में जो भी वर्कलोड है उसका वर्क स्ट्रेस है. यू कैन से स्ट्रेस इज कैन इजिली डिफाइन विद द मेंटल हेल्थ. कि किसी को भी स्ट्रेस फैक्टर इज वेरी कॉमनली सीन इन अ सराउंडिंग अवर. सो किसी को अपने प्रोफेशन के लिए रहता है, किसी को अपने पर्सनल लाइफ में इश्यूज रहते हैं, किसी को अपने लव्ड वंस के साथ, फैमिली रिलेशंस के साथ कोई ना कोई हिसाब से कोई ना कोई स्ट्रेस रहता है. अवर लाइफ इज लाइक, अभी हम रिसेंटली अब देखें जो 21st सेंचुरी इज कॉमनली बेस्ड ऑन जितना भी अपना प्रोफेशनल लाइफ है उसके साथ साथ एक मेंटल जो हमारा है, मेंटल एक वीकनेस, जिस वीकनेस नहीं कह सकते पर एक मेंटल फैक्टर ऑलवेज इज देयर. अगर काम का कोई स्ट्रेस बढ़ गया, काम का अगर कोई प्रेशर बढ़ गया, डेडलाइंस आर नियर, देन वो आपको कंटिन्यू स्ट्रेस देगा. इफ देर इज सम हार्ट ब्रोक, किसी का हार्ट ब्रोक हो रहा है तो कंटिन्यू आपको आ जाएगा वो स्ट्रेस. किसी का अगर फैमिली इश्यूज है, कोई कोई अपना लव्ड वन खो रहा है तो भी वो इट कंटिन्यूस ट्रिगर. So it is not like mental health was never been there before in our previous generation or in our like current generation. It is always been there. But currently क्या है कि वो काफी trigger हो रहा है because of the surroundings, because of the atmosphere, because of the work life, because of the personal life. So it is, if हम जनरल टर्म में डिफाइन करें ना, तो उसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि इट इज ऑलवेज बिन देयर, बट वी नेवर एक्नोलेज इट एज अ मेंटल हेल्थ इश्यू. वी ऑलवेज लाइक हाँ मैंने टेंशन, लाइक हाँ मुझे टेंशन है पर अब ठीक है वो चला जाएगा, या फिर हाँ मुझे कंटिन्यू टेंशन रहता है. उसके बाद जब हमारे ब्लड प्रेशर हाई होता है, जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल अप एंड डाउन होता है, जब हमारा एक सीरियस हेल्थ कंडीशन पे अफेक्ट होता है, जो फिजिकल आपके हेल्थ कंडीशन पे अफेक्ट होता है, दैट ऑल्सो पीपल रियलाइज कि हाँ मेरा नेचर इज लाइक अ, मुझे स्ट्रेस का नेचर है, मेरा मुझे कंटिन्यू स्ट्रेस आ जाता है, मुझे कंटिन्यू एक टेंशन रहता है. सो देन ओनली वी रियलाइज कि हाँ मुझे तो टेंशन का नेचर है ही मेरा, इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है. सो मेंटल हेल्थ के हिसाब से हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज ऑलवेज बिन देयर बट वी नेवर एक्नोलेज इट. Yes, उसको हमने yes. कभी एक्नोलेज नहीं किया है. So I can say या. that this is very burning issue in this time. और यस. actually ना ये burning issue बन गया है. ये issue जी. पहले से exist कर रहा था, लेकिन अब जी. ये issue lives burn out कर रहा है.
तो मैं जी इसीलिए, जैसे कि आपने अभी बताया कि देयर आर लॉट ऑफ एसोसिएटेड कंडीशंस विद दिस, बट हाउ मेंटल हेल्थ इज अ डिफरेंट इशू देन अदर सिचुएशंस और अदर हेल्थ इश्यूज, दैट इन योर या पर्सपेक्टिव। जी इन माय पर्सपेक्टिव आई कैन से कि अगर कोई फिजिकल इश्यू है ना, तो हम तुरंत ही उसका क्योर करेंगे। अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, सीजनल चेंज हुआ है, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा ले लेंगे। अगर मेरा ब्लड प्रेशर प्लस हो रहा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल है, मेरा डायबिटीज एक्नॉलेज हो रहा है, तो मैं तुरंत ही उसका मेडिसिन ले लूंगी। पर मेंटल हेल्थ का कैसा है पता है कि हम उसको जब तक वो एक पहले तो हम उसको इग्नोर करते हैं कि हाँ भाई है, उसको देखना ही नहीं है। अगर सम पीपल कमिंग विथ अस कि हाँ यार मुझे एंग्जाइटी हो रहा है, मुझे डर का कंटिन्यू रहता है, आई हैव अ स्ट्रेस नेचर, कि मुझे हर बात पे टेंशन हो जाता है, तो भी हम उसको बोलेंगे कि नहीं यार तू तो ज्यादा वीक है, ऐसा नहीं करना है। सो अगर इफ द सेम पर्सन इज कमिंग हायर आई हर्ड डायबिटीज, देन वी फील कि अरे यार तेरे को मेडिसिन लेना चाहिए। बट इफ द सेम पर्सन इज कमिंग विथ यू कि यार आई एम फीलिंग कंटिन्यू स्ट्रेस एंड मुझे कंटिन्यू थॉट आ रहा है, आई एम फीलिंग अ वेरी मुझे बहुत फियर हो रहा है अपने काम को लेके, अपने लाइफ को लेके, तो देन वी से कि नहीं नहीं, यू आर वेरी इमोशनल एंड वीक पर्सन, जस्ट फोकस ऑन समथिंग, डू सम मेडिटेशन एंड यू विल बी फाइन। सो दिस इज समथिंग इन अवर सिनेरियो। हम अगर हम अभी काफी डेवलपमेंट हुआ है ये थॉट में। पर अगर हम देखें ना तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में इतना ही डिफरेंशिएशन है कि बोथ आर द हेल्थ कंडीशंस। बट मेंटल हेल्थ को क्या हम काउंट करते हैं, इट इज ऑलवेज काउंटेड एज अ वीक वीक पर्सपेक्टिव। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, तो या तो हम उसको बोलेंगे कि दैट पर्सन इज वीक, वो प्रैक्टिकल नहीं है, या फिर हम उसको बोलेंगे कि दैट पर्सन इज, उसको थोड़ा मेंटली रिटार्ड हो गए। वी आर नॉट कंसिडरिंग इट एज अ कि नहीं उसको थोड़े, वो बंदे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो बंदे इज ही इज समवेयर स्ट्रगलिंग विथ हिज थॉट प्रोसेस और हर सराउंडिंग्स और समथिंग लाइक दैट। बट वी ऑलवेज कंसिडर कि हाँ उसमें मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। फिजिकल हेल्थ के लिए हम तुरंत ही दौड़ के चले जाएंगे, सुबह बुखार आया, शाम को वी आर एट द क्लिनिक, और हम उसका मेडिसिन पैरासिटामोल लेके बैठ जाएंगे। पर इफ वी आर कंसिडरिंग एज अ मेंटल हेल्थ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है काफी टाइम से, तो विल नेवर गो टू द, हमें वो डर लगेगा, हम वो शर्म आएगी अपने साइकेट्रिक के पास, अपने डॉक्टर के पास जाके उसका बात बताना। वी ऑलवेज फील कि ये दैट इज अ वेरी शेमफुल प्रोसेस, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मैं थोड़ी ना बीमार हूँ, मैं थोड़ी ना पागल हो चुका हूँ। दिस इज बोथ पर्सपेक्टिव। बट ये इन जनरल देखो तो बोथ आर द हेल्थ कंडीशन, बोथ नीड टू बी ट्रीटेड वेल। You both यस, need a good counseling, both need a good medicines, both need a good therapy after that. ये आपने Yeah, बिल्कुल सही बात की। पीपल अवॉइड दिस सिचुएशन वेरी मच, घर जी, वाले भी, अटेंडेंट्स भी। तो मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ, व्हाई पीपल डोंट टेक इट सीरियसली और एज अ प्राइमरी हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ को। या जी उसका मैं अगर रीजन देखूं ना तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यू कैन से। एक तो लोगों में वो अवेयर नहीं है कि एक्चुअली उन वो जब थिंग्स व्हाट आर सफरिंग दैट, कि वो एक्चुअली एक हेल्थ इश्यू है। अभी आपने रिसेंटली अगर न्यूज़पेपर में वगैरह में देखा होगा तो मेनी ऑफ पीपल आर डाइंग एट द वेरी अर्ली एज बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक। यस। अभी हमने हम अगर अपने सेलिब्रिटी वर्ल्ड में जाए तो अभी ही अपने ये जो बिग बॉस कंटेस्टेंट था, आई फॉरगॉट दिस नेम, दैट आल्सो पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। अभी वो यस। देखो वो बंदा 30-40 ईयर्स का है, ठीक है, हाँ। एंड दैट पर्सन हैज एवरीथिंग। वो ही हैज अ एवरी गुड बैकग्राउंड फैमिली, he has a good love life, he has a good professional life, though he had उसका फिटनेस लेवल भी काफी अच्छा था, he was a regular gym person, but though he died because of heart attack। अभी ये यंग एज में हार्ट अटैक आना क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि दैट पर्सन इज कंटिन्यू स्ट्रगलिंग विद सम थॉट प्रोसेस। बट क्या है कि उसने उस पर कभी भी लाइट नहीं लिया है, उसने उस पे उस बारे में उसको उस चीज को उसको ट्रीट करने के बारे में, या फिर उस चीज को किसी के साथ शेयर करने के बारे में वो कभी सोचा ही नहीं है। क्यों? बिकॉज अभी मेंटालिटी इस तरह सा है, अभी हमारा सराउंडिंग देखे तो पीपल आर थिंक नहीं यार मैं फिजिकली फिट हूँ, मैं सब ठीक है, मेरे पास सब ठीक, पर इफ इन डीप डाउन ही इज अंडरगोइंग सम थॉट प्रोसेस या फिर कोई स्ट्रेस उसको खा रहा है, तो उस पर फोकस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना या फिर मेंटल हेल्थ के बारे में किसी के साथ ओपिनियन लेना, काउंसलिंग लेना, दैट पर्सन थिंक्स इटसेल्फ कि नहीं ये दैट इज अ वेरी वीक प्रोसेस, आई डोंट वांट टू गो टू इट दैट। अभी भी क्या है कि फिजिकल हेल्थ को लेके, अगर फिजिकल हेल्थ है, नी पेन हो रहा है, दौड़ के जाएंगे। बट इफ दैट थिंग इज कि नहीं मेरे को थॉट प्रोसेस जा रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग इन समथिंग,
आई एम नॉट अटैचिंग टू एनीवन, देन दैट विल अफेक्ट कि हाँ यार इस पे तो मुझे फोकस नहीं करना है, आई विल डू मेडिटेशन एंड आई विल बी फाइन. इट इज समथिंग लाइक दैट, ये टाइम्स के साथ चला जाएगा, आई विल लेट गो. सो समवेयर द lack of awareness and lack of confidence to speak about your own self, दैट इज द मेन रीजन कि मेंटल हेल्थ का अभी भी वो लाइमलाइट में नहीं आ रहा है. पर वही चीज अगर हम अभी अगर आप सराउंडिंग, अगर आप करंट अफेयर में देख रहे हो, तो मेनी ऑफ द यंग पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ द ओनली ऑफ द हार्ट अटैक. अब वो बंदा फिजिकली द रिसेंटली द वन मोर एग्जांपल आई हैव कि रिसेंटली बॉलीवुड फिटनेस इंस्ट्रक्टर इज डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. अब वो बंदा फिजिक फिटनेस फिटनेस इंस्ट्रक्टर है. He is doing a very well in fitness. He has all knowledge about food and everything. He was taking good care of himself. He was earning well. He was a good family background. Though he is died because of heart attack. The reason, the reason is unknown. Why? Because somewhere that person might be affected with some personal issues or some thought process or some stress factor, but he never acknowledge it or he never go to speak about that. उसने like I'm not blaming anyone, but this is the criteria. But when we heard कि नहीं ये person का death हो गया heart attack से, तो हम we feel shock यार ऐसे कैसे हो गया. We have seen many of the people like that कि यार यंग जनरेशन अभी आप देखो तो 40 से 30 से 45 तक जो मिड एज ग्रुप बोल सकते हैं, यंग और मिड एज ग्रुप, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. दो दे हैव एवरीथिंग गुड, लाइक उसका ऐसा भी नहीं है कि उसका कोई स्ट्रेस फैक्टर कंटिन्यू है, ही इज सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस और समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज आल्सो इलनेस, बट he never tend to speak about that. He never go to Right. या काउंसलिंग के लिए नहीं जाया बंदा, कुछ किसी से बात नहीं किया, एट द एंड कंटिन्यू. मेंटल हेल्थ का कैसा है पता है, इफ अब उसे आप इग्नोर उसको आप इग्नोर कर रहे हो ना, तो कंटिन्यू आपके दिमाग में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. वन अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो, दैट विल अफेक्ट, दैट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, और फिर उसका आपका मेगा रिजल्ट मिलता है विच इज अ वेरी हर्टफुल. सो दिस इज द क्राइटेरिया कि You're अभी so लोग correct. का. Yeah. या You're telling about the current scenario. तो current या scenario में सबसे बर्निंग हेल्थ इशू है कोविड 19. जी जी. मैं खुद एक कोविड 19 सर्वाइवर रहा हूँ एंड आई नो ओके. कि जब इंसान इज इन द फेज ऑफ दैट 14 days ऑफ क्वारंटीन, तो जी जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है इन दैट जी कंटेक्स्ट. तो मैं जी आपसे ये जानूंगा हाउ मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू दिस करंट सिनेरियो ऑफ कोविड 19, बिकॉज आई जी. सीन अ लॉट अगे ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और कई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी है, दे आर डूइंग रिसर्चेस ऑन टू इट, दे आर फिलिंग आउट जी क्वेश्चन. इसका मतलब एक बहुत जी ही significant हिस्सा है कोविड 19 का भी स्ट्रेस जी लेवल इन हेल्थ. सो हाउ डू यू जी रिलेट इट मेंटल हेल्थ? जी. सी अभी हमें देखें तो पास्ट 2 years ऑफ आवर ओल्ड लाइफ, हम सबकी लाइफ के पास्ट 2 years वर वेरी क्रिटिकल यू कैन से. कि पहले तो हमें पता नहीं था कि व्हाट इज द कोविड. हमें 4 महीने के लिए सबको लॉकडाउन कर दिया था ऑल ओवर इंडिया में. उसके बाद धीरे धीरे ओपन हुआ. फर्स्ट वेव में वी डिडंट टेक इट सीरियसली बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल वेर डूइंग कि हाँ बिजनेस लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है. But in the coming to the 2021, we have seen the second wave, which was a very horrible phase. Many people were dying because of the lack of the simple basic things like bed नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्लड प्लाज्मा नहीं मिल रहा है. तो बेसिक नीड्स की वजह से भी लोग मर रहे थे. और हमारे सराउंडिंग में वी हैव सीन सो मेनी पीपल आर डाइंग. हमारे रिलेटिव्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स हो, उसके कोई भी चीज हो, हमने देखा है वो सब. तो उससे क्या हो गया कि लोगों में एक डर बैठ गया. और अगर आपने न्यूज़पेपर में देखा हो तो मेनी ऑफ द इवन आई हैव रिटन आर्टिकल अबाउट द डांस थेरेपी एंड मेनी ऑफ द, अगर आप न्यूज में या न्यूज़पेपर में भी किसी ने देखा हो तो देर आर पीपल, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जा रहा है तब पीपल आर जो वहाँ के केयर टेकर्स है, जो फिजियोथेरापिस्ट है, जो वहाँ का डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, दे आर गिविंग अ डांस सेशन, जो वहां पे उनको लाइव डांस सेशंस दे रहे हैं जस्ट टू डाइवर्ट देयर माइंड बिकॉज फ्रॉम देयर इलनेस एंड फ्रॉम देयर सराउंडिंग. व्हाई इट इज नेसेसरी? बिकॉज अगर कोई पर्सन इज इन हॉस्पिटल फॉर कंटिन्यू लॉन्ग लॉन्ग, उनका कोई इलनेस चल रहा है 14-15 दिन के लिए, अगर वो बंदा घर पे है या फिर हॉस्पिटल में आइसोलेटेड है, तो क्या होता है कि उनका विल पावर डाउन हो जाता है.
काफी वो पॉजिटिविटी बिगिनिंग में रहती है। पर अगर इफ यूर एनी एनी आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलर कोविड, कोई भी बीमारी ले लो, पर इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म ना, अगर लॉन्ग इलनेस से जा रहा है तो उसका विल पावर डाउन हो जाता है। और जब विल पावर डाउन हो जाता है तो दैट विल डायरेक्टली अफेक्टेड विद हिज जो उनका प्रोग्नोसिस रेशियो होता है उस पर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर उसका बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि जो उनको उनको जितना भी मेडिकेशन दो, जितना भी दवाइयाँ दो, वो उस पर डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाएगा। So that is direct connected. When we physiotherapist or other health specialist surrounding that hospital, we हमें जब लगने लगा कि नहीं यार हमारे पेशेंट्स इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट ही इज कंटिन्यूइंग स्ट्रेस, उनके पैरामीटर्स काफी खराब आ रहे हैं, तो वी हम फिजियोथेरापिस्ट इन दैट केस हेल्प एज अ उन्होंने डांस थेरेपी देना स्टार्ट किया। उन्होंने देर आर मेनी हॉस्पिटल्स की जो कंटिन्यू हैप्पी म्यूजिक बताते थे, गिटार सेशंस करते थे। इन गुजरात अवर गुजरात गरबा इज वेरी फेमस। सो Yes. वो लोग डूइंग गरबा, और जो भी रिकवर हुआ है उसके लिए गरबा करते थे। अगर कोई सोसाइटी में से सोसाइटीज है जो क्वारंटीन उनका पीरियड खत्म हो रहा है, तो दे आर वेलकमिंग देम विद द क्लैप्स एंड विद द Yes. एवरीथिंग। तो क्या है कि somewhere we healthcare help them to give a positive vibes with our therapy, पर उनको पता नहीं कि ये थेरापी है। डांस थेरापी इज समथिंग लाइक दैट कि आपको लोगों को डांस करवाना है, पर ऐसा नहीं है कि चलो बुगी वुगी स्टार्ट करो, ऐसा नहीं है। उनको आप हैप्पी म्यूजिक के साथ जनरल बॉडी मूवमेंट कराओ, जिसे हम फिजियोथेरापी करवाते हैं। फिजियोथेरापिस्ट का क्या होता है रोल, कि जो बेड रीडर है हम उसको एक्सरसाइज करवाने चाहते हैं इन ईच एंड एवरी हॉस्पिटल, राइट। तो अब उनको ऐसे एक्सरसाइज करवा के दैट पर्सन इज नॉट एंजॉइंग इट, पर हमें उसको एंटरटेन बनाना है। तो एज अ फिजियोथेरापिस्ट हम उनसे बातें करते हैं, हम उनका काउंसलिंग लेते हैं कि हाउ आर यू आंटी, हाउ आर यू अंकल, व्हाट्स गोइंग ऑन, आपने क्या खाया, कैसा रहा। उसके साथ हम उसको क्या करते हैं कि हम एक म्यूजिक थेरापी जो डांस थेरापी है उसके साथ हम उसको एक्सरसाइज करते हैं, करवाते हैं, ताकि जो एक्टिव मूवमेंट्स है उनकी, जो उनकी मूवमेंट सस्टेन है, वो उनको डांस बीट पे करवाना। दैट विल हेल्प। उनको क्या उससे हेल्प होता है कि उनको पता भी नहीं होगा एक्सरसाइज हो रहा है, प्लस उनका एक्सरसाइज हो जाता है। और उनको जो कंटिन्यू स्ट्रेस रहता है पूरे दिमाग में, कब मैं ठीक होगा, कब घर का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, तो वो स्ट्रेस ही और शी इज फॉरगेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स, लाइक 10-15 मिनट का जो भी सेशन होगा वो भूल जाएगा बंदा, और वो उसके साथ एंजॉय करना रहेगा। आप इन पर्सनल भी हम अगर हम देखें कि वी आर गोइंग टू सम स्ट्रेस और समवन इज प्लेइंग अ गुड म्यूजिक, और तो हम क्या करते हैं कि वो जो भी जितना दिन, या फिर वी आर सीइंग सम गुड मूवी या फिर गुड सीरीज, कुछ कुछ भी अच्छा देख ले, तो क्या हम थोड़ी देर के लिए वो भूल जाएंगे Yes. कि व्हाट आर द रियलिटी, हम थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे, हाँ यार वी आर एंजॉइंग समथिंग। सो इन फिजियोथेरेपी वी कैन हेल्प फॉर अ मेंटल हेल्थ, कि हम पेशेंट को डाइवर्ट कर सकते हैं टू गिव हिम अ पॉजिटिव वाइब्स, उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी कैन गिव अ गुड काउंसलिंग उसको। पेशेंट को ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज करा के निकल जाना है, आप जाओ उसके साथ बातें करो, 5-10 मिनट बैठो उनको एक, क्योंकि वो बंदा अकेला है, ऐसा भी नहीं है कि उसको फैमिली के साथ है। व्हेन ही इज हॉस्पिटल, ही और शी इज हॉस्पिटलाइज, वो अकेले होंगे वहां पे। Yes. तो फॉर अ फ्यू डेज लाइक 1 or 2 वीक यू आर द फैमिली फॉर हिम। तो आपको उनके साथ गुड कम्युनिकेशन करो, आप उनसे अच्छे से, जैसे मैंने डांस थेरेपी का बोला, देर आर मेनी, अगर देर आर म्यूजिक थेरेपी, उनसे अच्छा म्यूजिक म्यूजिक बिल्कुल, बजाओ वहां पे। अगला सवाल आपसे बिल्कुल यही था कि भई या हम काफ़ी देर से मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में बात जी कर चुके हैं या कर रहे हैं। जी बट जी वी एज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो हम क्या जी कर सकते हैं, क्या इंटरवेंशन, क्या इंटरवीन कर सकते हैं टू जी इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ पेशेंट्स, नॉट ओनली विद जी कोविड-19 बट इन जनरल एज़ वेल? इन जनरल यस। सी मेंटल हेल्थ का क्या है कि मेंटल हेल्थ का प्रॉपर अगर कोई पर्सन, इट्स एन अक्यूट स्टेज, इट्स एन बिगिनिंग स्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ। अगर कोई पर्सन इज जस्ट सफरिंग इन अक्यूट स्टेज, देन फिजियोथेरेपी इज डेफिनेटली हेल्प। बट वो अगर क्रोनिक स्टेज में जा रहा है तो उसको तो आप उसको साइकेट्रिक के पास उसको कंपलसरी जाना पड़ेगा और गुड मेडिकेशन, वो हम डिस्क्राइब, वो फिजियोथेरेपी पे काम नहीं है कि वो हम प्रिस्क्राइब कर सके। बट यस, एज अ मेडिकल पर्सन हमारे फिजियोथेरेपी में ये पढ़ने में भी आता है,
साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ये सारी चीजें। yes, तो हम उसको यूटिलाइज करना है। हम क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं ना तब वो सब्जेक्ट छोड़, हाँ चलो 50 मार्क का सब्जेक्ट है वो पढ़ के छोड़ देना है। इट इज नॉट लाइक दैट। अगर उसको आप डिटेलिंग में जा रहे हो तो इट इज अ वेरी यूजफुल। करंटली इट इज अ वेरी यूजफुल। अगर आप ओवरसीज कंट्रीज में देखते हो तो फिजिक मेंटल हेल्थ इज मेन हैंड ऑन द फिजियोथेरापिस्ट। उसका मेंटल हेल्थ में मेन रोल फिजियोथेरापी का होता है जब तक वो पेशेंट आपके सामने है। अगर इफ ही क्रॉस द वन स्टेज, अगर वो क्रोनिक स्टेज में चला गया है तो यू कांट हेल्प हिम। बट अगर वो एक्यूट स्टेज में है, जब वो हॉस्पिटलाइज है, जब वो आपके पास आ रहा है विद सम स्ट्रेस, तो उसके साथ आप बैठ के थोड़ा काउंसलिंग, काउंसलिंग इन द सेंस कि आप उससे बातें करो, ये कैसे हो, क्या कर रहा है, कैसा फील कर रहे हो आज। तो अगर आप इतना भी पूछोगे ना शांति से, अगर आपके क्लिनिक में भी कोई पेशेंट आ रहा है ना, तो इफ यू हैव 1 hour विथ हिम, राइट, तो इफ यू आर गिविंग अ गुड वाइब्स ना, उससे अच्छे से प्यार से बातें करोगे ये वो, तो पर्सन फील वार्म, और वो अपने आप ही शेयर करना स्टार्ट कर देगा। दीज आर yes, ये हम सब ने देखा होगा, जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिशनर है वो सब ने देखा होगा। आई एम अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर, मैंने ये काफी देखा है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, वो काफी सारी चीजें वो, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी टू डिस्कस विद स्ट्रेंजर रेदर देन अ रिलेटिव्स और अ फ्रेंड्स। बिकॉज क्या है कि स्ट्रेंजर इज नॉट गोइंग टू जज यू, so correct, you have to just take that example and apply in your professional field कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है तो गिव अ गुड काउंसलिंग टू हिम और हर। उसके बाद क्या करना है आपको कि उसके साथ उनका जो आपको पता चल जाएगा कि दिस पर्सन इज अफ्रेड ऑफ समथिंग, और इसको उनको ऐसा है कि वो कैसे ठीक हो पाएंगे, या फिर उनको ऐसा है कि कोई फैमिली इशू हो रहा है, तो उसको उस पे से डाइवर्ट करना है आपको। उसको गुड वाइब्स दो, उसको आप डांस थेरेपी करवा सकते हो, उनको हैप्पी एक्सरसाइज करवा सकते हो। कि ऐसा नहीं कि आपको मोनोटोन, हाँ पेशेंट आया है चलो 1 2 3 4 5 करवा के बैठ जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना है। उनको इस तरह से एक्सरसाइज कराओ कि उनको पता भी ना चले कि यू आर डूइंग इट, और उसके साथ एक्सरसाइज करवा रहे हो, उनको मशीनरी दे रहे हो। इफ यू आर प्लेसिंग अल्ट्रासाउंड और IFT टू दैट पर्सन, देन सिट विद देम। अगर वो 15 मिनट के लिए, उसको तो मशीन लेना है, मशीन इलेक्ट्रोथेरेपी जा रहा है उसके पास, पर 15 मिनट उसके पास बैठोगे तो उससे वो बातें कर पाओगे आप, उससे कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो यू कैन, उसको क्या रहेगा कि उसकी कनेक्शन बनाना है, दैट इज व्हाट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। जब आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो डोंट फील लाइक, डोंट ट्रीट इट लाइक अ, हाँ चलो पेशेंट है जाने दो, नो, जस्ट ट्रीट हिम लाइक एज अ फैमिली मेंबर। उससे क्या होगा, आपका बॉन्ड बनेगा पेशेंट के साथ, पेशेंट का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा कि हाँ यार मुझे ये पर्सन, वो जिसे बोलते हैं ना स्किल्स, दिस इज yes, ऑल्सो स्किल। स्किल्स आर नॉट बेस्ड कि आप कितना अच्छा मैनुअल थेरेपी कर रहे हो, कितना अच्छा MMT कर रहे हो, नो, इट इज समथिंग लाइक कि आपका वर्बल स्किल भी काफी अच्छा होना चाहिए। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इज अ मेन रोल, क्योंकि correct, फिजियोथेरेपी फील्ड कैसा है, राइट, कि यू आर कंसिडर एज अ डॉक्टर बट यू आर नॉट अ ओनली अ सर्जिकल पर्सन। आपको पेशेंट रिहेब के लिए आपके पास आ रहा है, तो फिजिकल एज वेल एज मेंटल रिहेब इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप उसको मेंटल रिहेब दे सकते हो, अच्छी बातें करके कर सकते हो, काउंसलिंग करके कर सकते हो, उनको डांस थेरेपी, उनको एक्सरसाइज इस तरह से कराओ कि उनको लगे भी नहीं कि एक्सरसाइज है। जब पेशेंट आ रहा है थोड़ा वार्म म्यूजिक स्टार्ट कर दो, हैव अ गुड एटमोस्फेयर क्रिएट करो, अच्छे प्लांट्स लगाओ, अच्छे स्लोगन्स लगाओ, तो क्या होगा कि उसको भी एक पॉजिटिव वाइब आएगा। It is very simple to create a positive environment in your clinic setup or in your hospital setup. तो yes, पेशेंट्स को घर जैसा फील करवाना, दैट इज द मेन रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। तो उससे उसका 50 to 70% उनका स्ट्रेस वहीं पे खत्म हो जाता है। प्लस यू आर इन गुड स्किल, तो आप उनको रिजल्ट तो देने ही वाले हो। तो धीरे धीरे उनका एक क्या बोलता है, उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। वी हैव सीन मेनी न्यूरो पेशेंट्स, राइट, तो न्यूरो पेशेंट्स में क्या होता है कि द फर्स्ट थिंग दैट इज कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन हो जाता है कि यार मैं कब चल पाऊंगा, कब मैं खड़ा हो पाऊंगा। yes, मेनी स्ट्रोक पेशेंट्स है, पैरालिटिक पेशेंट्स है, तो पार्किंसंस है, तो सब सबसे पहले उनका मोरल डाउन हो जाएगा कि पहले तो मैं गाड़ी चला सकता था, अब तो मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। तो एट दैट टाइम यू हैव टू हेल्प देम विद मेंटल एज वेल एज फिजिकल रिहेब, कि आपको एक्सरसाइज करवा के तो उनको ठीक करना ही है, दैट इज योर रोल। बट उसके साथ एज अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, फॉर अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, आपको उनके साथ एक सा बॉन्ड बनाना है ताकि उनको आप पे ट्रस्ट बढ़े, ही गेट मोर इंटरेक्ट विथ यू, और उनको लगे कि नहीं ही इज अ वेरी ट्रस्टफुल पर्सन, शी इज अ वेरी ट्रस्टफुल पर्सन। तो उसके साथ उनको आपको उनके साथ इस तरह से कनेक्ट होना है। right.
मैं यही जी चीज जानना चाह रहा था, क्योंकि कई जगह मेंटल हेल्थ प्राइमरी इश्यू होता है, कई जगह जी एसोसिएटेड या सेकेंडरी इश्यू होता है। जी तो मैं ये जी आपसे जानना चाहता था, कौन सी इतनी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट एज ग्रुप है जो कि जी प्राइमरली एसोसिएट होती है मेंटल हेल्थ से, या फिर सेकेंडरी सेकेंडरी तो किसी भी जी एज में हो सकती है एक्चुअली, बट हम्म प्राइमरली कौन सी एक ऐसी एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है मेंटल हेल्थ से? जी अ, अगर हम रिसेंटली सिनेरियो में देखें ना, तो अगर 25 एज ऑफ जो भी जब वन पर्सन स्टार्ट गेटिंग ऑन, जब वो जॉब ज्वाइन करता है या फिर जब वो अपना खुद का सेटअप बना रहा है, तो एट दैट एज मीन्स बिगिनिंग ऑफ द 25 एज टू अबाउट 30-40 एज, जब वो पर्सन अकेला हो जाता है लाइफ में, एक टाइम होता है जब वो रिटायर हो चुका है, उसका अभी अर्निंग सोर्स खत्म हो चुका है। हमने देखा है काफी कबार काफी रिटायरमेंट उनका हो गया है, उनका जॉब एज खत्म हो चुका है, उसके बाद क्या होता है कि दैट पर्सन बिकम, अरे यार अब मैं क्या करूंगा। वी हैव सीन मेनी पीपल कि रिटायरमेंट प्लान नहीं करते, तो क्या होता है उसके बाद जो उनका जो एक्टिविटी प्रोसेस है वो कम हो गया है, तो घर पे बैठे बैठे उनको कंटिन्यू थॉट आएंगे, यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इट इज समथिंग लाइक दैट। तो मेनी सेम विद द लेडीज, मेनोपोजल एज आ जाता है, तो वी हैव सीन मेनी ऑफ द लेडीज आर अंडर गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, उनको पता नहीं है, पर जैसे हम बोलते हैं ना कि घर पे कि यार मम्मी बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी है, बट व्हाई, बिकॉज शी डोंट नो कि शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस। उनको उनका जो हार्मोनल चेंजेस हुआ है उससे क्या होता है, उनके थॉट प्रोसेस पे इफेक्ट होएगा। तो बिटवीन द एज ऑफ 25 टू 50-60, दिस इज द मेन एज के वहां पे काफी सारे लोग, या फिर वो टीनेज हो सकते हैं, टीनेज इन द सेंस की यंग ब्लड्स हो सकते हैं 25 की 30 की, जो अपने करियर को लेके, जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके ज्यादा अफेक्टेड है। देयर इज ऑल्सो मिड एज ग्रुप कि जो अपने सक्सेस को लेके, जिसको कंटिन्यू रहता है ना कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग, बट वो नहीं हो पा रहा है। So that is one group, and that is another group की जो सीनियर सिटीजन ग्रुप हम जिसको बोलते हैं, जिसमें मेल पर्सन इज उनका एक्टिविटी कम हो चुका है, जो उनका पूरा प्रोफेशनल लाइफ है वो का थोड़ा सा वो एक लोअर लेवल पे आ चुका है, क्योंकि सर्टेन एज के बाद रिटायरमेंट आ जाता है इसलिए, और लेडीज में मेनोपोजल एज आता है। तो दिस आर द थ्री ग्रुप्स की, उसमें सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेस ये एज वाले आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। 35 to 40 जो मिड एज क्राइसिस में जा रहे हैं, 25 to 30 दैट आर द यंग पर्सन, एंड द 50 to 60 दैट आर की अब हम क्या करें, हाउ, बिकॉज उनका ऐसा है कि अब हम क्या कर सकते हैं, आर वी यूजलेस नाउ, बिकॉज हमने पूरी लाइफ इतना काम किया है, तो अभी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दैट। क्यों ना आ जाता है लाइफ में बहुत ज्यादा। या यस यस। सो या तो दिस आर द एज ग्रुप की वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, इस तरह राइट, से। बिफोर वी मूव अहेड मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अगर जो हमें सुन रहे हैं अभी लाइव ऑडियंस, इफ यू आल्सो जी हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, तो मैं मैम से डायरेक्टली पूछ लूंगा बिफोर वी मूव या अहेड। प्लीज। प्लीज जी राइट इट इन चैट बॉक्स, तो हम विल बी जी टेकिंग इट इन दी। चलिए, या नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये है आपसे कि जी वी एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, क्या व्हाट चेंज वी कैन ब्रिंग अबाउट इन पीपल दोज हु हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज? जी। एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आई वुड लाइक टू से कि पहले तो प्रोफेशनल लाइफ को कंप्लीटली प्रोफेशनल मत काउंट करो। कंसिडर कि आप जो कर रहे हो ना, आपको उसके अंदर आपको एक्चुअल में बेनिफिट देना है। कभी कभार मैं आई हैव सीन मेनी फिजियोथेरापिस्ट कि ओनली प्रोफेशनल बिहेवियर रहता है उनका, आए है पेशेंट एक्सरसाइज करवाया जाने दिया, उसको पता भी नहीं होता कि वो पर्सन उनको उसको मजा आ रहा है एक्सरसाइज में, इजी इजी हैविंग अ गुड प्रोग्नोसिस, उसका अच्छा जा रहा है, उनका रिकवरमेंट किस तरह किस लेवल पे हो रहा है। समटाइम्स ना वी हैव सीन कि अगर क्लिनिकल प्रैक्टिशनर है, तो कोई पेशेंट अगर आपके पास सडनली आना कम कर बंद कर देता है उनके रिहेब पीरियड खत्म होने से पहले, तो एज इन मेनी थेरेपिस्ट को उसके पास जाके देखते भी नहीं है कि भाई यार क्यों नहीं आ रहे हो आप, हाउ आर यू फीलिंग वेल, हाउ आर यू डूइंग। सो डोंट बी टू प्रोफेशनल। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रोफेशनल ना रहो, आई एम जस्ट सेइंग कि डोंट बी टू प्रोफेशनल। जस्ट हैव अ यू नो एक वार्मथ ऑलवेज रखो, एक डाउन टू अर्थ जो एटीट्यूड रहता है ना डॉक्टर का, अगर वो जितना अच्छा है ना, आपका पेशेंट आपके साथ उतना ही अच्छे से घुलना मिलना स्टार्ट करेगा। तो बेटर के हैव अ
down to earth attitude when you are doing you are working as a clinical therapist or as a hospital therapist. आप उसको एक अपना प्रोफेशन को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रखोगे तो गिव अ गुड वार्मथ एंड गुड पॉजिटिव वाइब्स टू योर पेशेंट, ताकि वो अच्छे से आपके साथ घुल मिल सके, अपनी बातें शेयर कर सके, और आपको उनका ट्रस्ट जीतना है, राइट? सो उसके लिए तो आपको उसके साथ इंटरेक्शन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि थेरापिस्ट पेशेंट आ रहा है, आपको पता भी नहीं उसका नाम क्या है, उसका आपको कंडीशन पता है कि हाँ, ही सफरिंग फ्रॉम ओए, बट यू डोंट नो द हिस्ट्री बिहाइंड इट, यू डोंट नो द हाउ द कंडीशन ऑफ इट राइट नाउ, या उनका मेंटल स्टेटस कैसा है, वैसा नहीं करना है, आपको इंटरेक्शन एक अच्छा बनाना है। Also keep a continue follow up. If the person is stop coming into your center, so just have a give a call कि how are you, why you are not coming, like that. Also I have seen कि कैसा होता है कि सेंटर पे अगर कोई पेशेंट आ रहा है, हम उसको थेरापी दे देते हैं, इलेक्ट्रोथेरापी दे के हम अपने काम पे लग जाते हैं। बट इफ यू हैव अ फ्री टाइम, तो बेटर कि उसके साथ बैठो, 5 मिनट बैठ के उनके साथ पूछो उनकी हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है आपको, आपको डू वी नीड टू चेंज अ थेरापी। तो कंटिन्यू एक फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स रखिए, और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने पहले हमारे एजुकेशन में भी आया था। और जो एक साइकोलॉजी है, पेशेंट साइकोलॉजी को जीतना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। प्लस उनका आपको एक रिकवर प्रोसेस है ना, उनका आपको काफी अच्छा मिलेगा, फास्ट मिलेगा। सो जस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विद योर पेशेंट, एंड उनको एक पॉजिटिव वाइब देना कंटिन्यू रखो। डोंट फील लाइक कि हाँ यार, इससे तो मुझे पैसे ही लेना है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जस्ट इफ यू आर, अगर आप एक पेशेंट को जीत सकते हो ना, तो आप पूरा फैमिली आपके साथ कनेक्ट होगा। दैट इज 100%. ऑल्सो, या दैट इज ऑल्सो बेनिफिट एज फॉर योर प्रोफेशन ऑल्सो। आपको प्रोफेशनल पे तो हेल्प हो रहा है, पर मेंटली भी अगर पर्सन का अच्छा आपको उसका एक आपका अच्छा इम्पेक्ट उस पर पड़ रहा है, तो दैट विल अफेक्ट नॉट ओनली हिम बट उनकी पूरी फैमिली को भी। एक आपके लिए एक रिस्पेक्ट आएगा कि नहीं, दैट पर्सन, जो अभी आज का हम देखते हैं कि फिजियोथेरेपी का इतना, मैंने काफी बार सुना है कि भाई फिजियोथेरेपी को इतना डिमांड नहीं है, इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, काउंसलिंग की जरूरत है, ये वो। बट दैट इज अ सिंपल थिंग कि अगर आप अपने पेशेंट के साथ ही अच्छा बॉन्ड बना रहे हो, तो आपको नेचुरली रिस्पेक्ट देगा। Right. आपको रिस्पेक्ट जीतना है, राइट? सो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि आप उसको अच्छा प्रोग्नोसिस, अच्छी तरह से ट्रीट करो उसको, अच्छी तरह से आप ट्रीटमेंट तो देने ही वाले हो, बिकॉज दैट इज योर जॉब। पर उसके साथ साथ ही उससे एक अच्छा बिहेवियर करोगे, तो यू आर अर्निंग अ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि डोंट कॉल मी कसरत वाला, ही और शी डेफिनेटली एड्रेस यू विद द डॉक्टर, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। सो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर आप ही खुद अपने प्रोफेशन का रिस्पेक्ट रखोगे और इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दोगे, तो यू आर डेफिनेटली अर्निंग अ रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल। बट मैं एक चीज मेरे दिमाग में क्वेरी हमेशा रहती है, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज अ सोशल स्टिग्मा हमारे जी, यहाँ पे। अगर मेंटल हेल्थ का डिस्कशन करते हैं तो आम जनता उस जी, इंसान को पागल समझती है, और जी, डॉक्टर को भी पागलों का डॉक्टर कहा जाता है। जी, तो जी, व्हाट कुड बी दी बेस्ट स्टेज कि जब हम एक साइकियाट्रिस्ट को रेफर कर सकते हैं, और एक साइकियाट्रिस्ट कब वो सही समय होता है जब एक साइकियाट्रिस्ट इंटरवीन करे इस जी, चीज के अंदर, और उनका क्या रोल रहता है मेंटल हेल्थ में? जी। सी, अगर हम देखें ना, तो यस, यू हैव सीन वेरी, यू हैव सेंटेंस वेरी राइट कि हम वो पागल समझते हैं और डॉक्टर को भी हम पागल ही बोल रहे हैं, राइट? बिकॉज बट अगर हम वो देखें ना, कि तो इट इज अ वन एंड अनदर थिंग कि जैसे कोई हेल्थ इश्यू है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ नी पेन, तब बिगिनिंग में उसको क्या करोगे, एक्सरसाइज करवाओगे। बट लेटर स्टेज वो एक्सरसाइज से भी ठीक नहीं हो रहा है, यू विल अंडरगो सर्जरी, बिकॉज दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट? सो सेम विद दैट कि अगर आपका बिगिनिंग हेल्थ, अगर आपके पास कोई पर्सन आ रहा है, या आप यू सीइंग समवन, या आपको सराउंडिंग में आप देख रहे हो अपने फैमिली या फ्रेंड्स को, किसी को भी, दैट पर्सन इज कंटिन्यू सफरिंग समथिंग, तो आप उनसे काउंसलिंग कर सकते हो एज अ थेरापिस्ट, कि आप उनसे पूछो, उनसे बात करो, कंटिन्यू उनका फॉलो अप लो। बट सर्टेन क्या होता है कि एक लेवल के बाद, दैट पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग यू वेल, या फिर दैट पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विथ यू टू शेयर एवरीथिंग, then let them ask to contact a psychiatrist, because in that case psychiatrist is the best person to get an advice and to get an medications। क्योंकि हर एक कंडीशन, हर कोई भी हेल्थ कंडीशन ले लो, प्राइमरी लेवल जो एक्यूट लेवल है, उस पे यू कैन हेल्प। बट इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग पीरियड, अगर वो बंदा कंटिन्यू 1-2 महीने से यही सफर कर रहा है,
then don't be don't be that psychiatric person. Just go, just convince them to आप उनको एक प्रोफेशनल, मोर प्रोफेशनल हेल्प के पास ले जाओ कि नहीं भाई। उनसे क्या होगा कि उनको एक प्रॉपर मेडिकेशंस मिलेंगे, उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग मिलेगा, उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग पीरियड, अगर वो पर्सन सफर कर रहा है काफी 10-15 दिन से ज्यादा सफर कर रहा है यही बात को लेके, यही बात आपके पास आके बोल रहा है। कभी कभी हम फ्रेंड्स में अगर बैठे हैं तो हमें पता होता है कि हमारा फ्रेंड ये सफर कर रहा है, हमारी फैमिली ये सफर कर रही है। हम एक दो बार समझाते हैं उनसे कि यार ऐसा नहीं होता, ये होता, हम उनको सुनते हैं, समझाते हैं। पर अगर सेम चीज रिपीट हो रही है ना, इट इज कंटिन्यूअस ट्रिगरिंग, वो कंटिन्यू उसको ट्रिगर कर रहा है वही बात को, तो कन्विंस देम टू गो साइकेट्रिक। तो साइकेट्रिक के पास जाने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। जैसे आप ऑर्थोपेडिक के पास जाते हो, जैसे आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, जैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वैसे ही साइकेट्रिक इज ऑल्सो डॉक्टर। वो उसका भी एक, इट इज नॉट अ कंसिडर एज अ पागलों का डॉक्टर, इट इज अ वेरी रेप्यूटेड लाइन। अगर आप उनको एक बार उनके साथ मिलोगे, काउंसलिंग करोगे, प्रॉपर मेडिकेशन आपको मिलेगा, तो जो आपका हेल्थ कंडीशन है वो काफी काफी इंप्रूव हो सकता है। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस बट इट इज वेरी हेल्पफुल। अगर आपको क्योर होना है कम्प्लीटली, देन यू हैव टू डेफिनेटली उनके पास जाना काफी जरूरी है। तो वो Yes. स्टिग्मा ब्रेक करने की बहुत जरूरत है कि यार मैं कैसे जा पाऊंगा, वो वहां पे जाऊंगा, टैबू है ना कि नहीं साइकेट्रिक के पास जा रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट अ मेंटली। इफ अगर हम भी देखें ना, तो कोई, अगर कोई पर्सन मेडिसिन ले रहा है किसी की चीज के लिए, तो हम उसको जज करने लगते हैं, Exactly. ही और शी इज मेंटली वीक। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। दैट पर्सन इज कंटिन्यू स्ट्रगलिंग विद हिम और हर सेल्फ। उसको भी टाइम लग रहा है कि यार मैं कहाँ से, उसको ही और शी ऑल्सो वांट टू कम आउट फ्रॉम इट, बट समवेयर उसको नहीं हो रहा है। तो जस्ट बी अ सपोर्टिव, डोंट बी अ जजमेंटल। उसको सपोर्ट करो, उसको काउंसिल करो, उनके साथ बात करो, और उनको पुश करो कि नहीं नहीं, आप हो जाओगे, आप साइकेट्रिक के पास जाओ, आप मेडिकेशन कंटिन्यू लो। तो दैट विल ब्रेक द बैरियर। हमें ही सुधरना है ये मेंटालिटी के लिए, कि भाई आप जितना, आप देख सकते हो हमारे फैमिली में भी हम देखेंगे कि यार काफी लोग आफ्टर एक सर्टेन इंसिडेंट काफी लोग मेंटली एक वीक हो जाते हैं। तो Yes. आप ही उनको काउंसलिंग करो, बट इफ ही स्ट्रगलिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग पीरियड, देन प्लीज डेफिनेटली गो टू अ गुड साइकेट्रिक। देयर आर सो मेनी काउंसलिंग सेंटर्स, आर देयर सो मेनी, आपको उसके काफी उनको बेनिफिट्स मिल पाएंगे, मेडिकेशन प्रॉपर हो जाएगा। तो इट इज वेरी डेफिनेटली लाइक वो एक स्टिग्मा ब्रेक करने की काफी जरूरत है। Yes, certainly, जी। certainly. So we have a जी। question from the audience. जी। She's Dr. Sonam. जी। She's saying that मैं इसको एक तो post भी कर देता हूँ. So जी। she's saying that as I'm in academics, so how can we motivate and handle our physiotherapy students with positive attitude in any situation? जी। सी इन एज आई रिसेंटली सेड कि फिजियोथेरेपी का किस तरह से है कि फिजियोथेरेपी को अभी भी इतना अहमियत नहीं दे रहे हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल अराउंडिंग कि अभी भी फिजियोथेरापिस्ट को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है जितना अदर कोई हेल्थ प्रोफेशनल को मिल रहा है। सो चेंज विल कम विथ फर्स्ट अस। अगर आप ही अपना सर्विस अच्छा कर रहे हो, आप ही अपना एक, एज आई बिफोर सेइंग कि आप ही उसको एक एक अच्छा डिलीवरी कर रहे हो, एक अच्छा आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, अच्छा मेंटल रिहेब दे रहे हो, अच्छा फिजिकल रिहेब दे रहे हो, तो दैट उसका एटलीस्ट वन यू कैन चेंज माइंड ऑफ अ वन माइंडसेट ऑफ अ वन पर्सन। अगर कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो अगर आप उसको अच्छा फिजिकल रिहेब दे रहे हो, उसके साथ साथ आप उसको बोलते हैं ना, एक प्रोफेशनल एक हेल्प दे रहे हो उसको, तो आप उसका एक का माइंडसेट चेंज कर पाओगे। सो इट इज अ वेरी स्ट्रगलिंग फेज। इतना नहीं है इंडिया में फिजियोथेरेपी के लिए जितना पहले था, बट ये स्ट्रगल इज स्टिल देयर टू Yes. मेक देयर ओन आइडेंटिटी। बट द ओनली थिंग इज जस्ट अपने जो प्रोफेशन है, अपना सराउंडिंग के हिसाब से उसको चेंज मत करना। बी प्रोफेशनल, गिव अ गुड वाइब्स ऑलवेज। आप अपने पेशेंट को जो है उसको एक फैमिली की तरह ट्रीट करोगे, उसको एक अच्छी सी प्रोफेशनल और मेंटल हेल्प दोगे, तो डेफिनेटली उसका माइंडसेट तो आपके लिए चेंज हो ही जाएगा। दैट इज माई श्योरिटी कि Yes. अगर आप उसको एक फैमिली वाइब दे रहे हो ना, तो दैट विल डेफिनेटली 4-5 साल के बाद भी वो आप ही को याद करेगा। कभी भी कुछ भी आएगा कि नहीं नहीं, मुझे तो ये डॉक्टर के पास ही जाना है, दैट डॉक्टर वाज वेरी गुड।
तो Yes. और वो जो डॉक्टर बोलना है ना, वो आपको अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि Yes. इंडिया में क्राइटेरिया ऐसा ही है। वो आपको अर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ दैट प्रोफेशनल एज वेल एज दैट सपोर्टिव टू अर्न दैट थिंग। तो यस, Yes. विथ कंटिन्यू स्ट्रगलिंग विद द पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपके काम को लेके है, that only you can earn this respect from your patients. और For yes, struggle is there but it is not a permanent struggle। अब देखो तो जब हमने फिजियोथेरेपी ज्वाइन किया था तब इतना अवेयरनेस नहीं था जितना हम अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना अवेयर है। देयर आर मेनी कॉलेजेस आउट देयर, देयर आर मेनी प्रोफेशनल्स, देयर आर मेनी सेंटर्स आउट देयर कि जिसको फिजियोथेरेपी अभी हर फील्ड में आ चुका है। नॉट इवन स्पोर्ट्स, गायनिकोलॉजिस्ट है, न्यूरो कार्डियो कंडीशन, ऑर्थो कंडीशन, इन ईच एंड एवरी कंडीशन फिजियोथेरापी इज मस्ट। कोरोना में भी हमने देखा था हाउ फिजियोथेरापी, हमने काफी आर्टिकल पढ़े थे yes. कि हाउ फिजियोथेरापी इज हेल्पफुल, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का क्या है, किस तरह से चेस्ट फिजियोथेरापी रिक्वायरमेंट है, लंग फंक्शन कैसे बढ़ाना है। तो फिजियोथेरापी का अभी कैसा है कि पीपल केम टू नो कि यार फिजियोथेरापी तो करवाना ही है मुझे। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो वो स्लोली स्लोली चेंज आएगा, बट कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही हर पेशेंट को ट्रीट करो, तो एटलीस्ट यू कैन चेंज। अगर एक पेशेंट का भी माइंडसेट अगर आप चेंज कर सकेंगे ना, तो इट विल अफेक्ट उसकी फैमिली को। हाँ यार, उसका एक फैमिली का माइंडसेट चेंज होगा। इट इज समथिंग लाइक अ चेन सर्कल, राइट? Yes. Yes. तो जस्ट गिव विद दैट कंप्लीट पॉजिटिव एटीट्यूड। Great. जी So this is where we end with our wonderful session. मेरे लिए बहुत ही जी enlightening session रहा ये. It जी has been really a wonderful eye opener for I hope a lot of our listeners जो कि अभी हमें जी सुन रहे हैं या जो बाद में जी भी इस वीडियो को देखेंगे. So जी। just one last take home message for everybody from your side. See, take home message I will say कि if someone is coming with you or some plus or minus problem apart from their health, कोई पर्सन स्ट्रेस में अगर आप उसको देख रहे हो या फिर कोई आपसे बात करने आ रहा है, तो जस्ट बी ए गुड लिसनर रेदर देन गिव अ गुड आंसर। अब अगर आप उसकी बात अच्छे से सुनोगे ना, तो उसका 50% स्ट्रेस है ना अपने आप कम हो जाएगा। बिकॉज जब कोई मेंटल हेल्थ से परेशान हो रहा है ना, तो उसको एडवाइस नहीं चाहिए, उसको पता होता है, सब चीज पता होता है, पर समवेयर क्या है कि वो अंदर काफी थॉट प्रोसेस का एक्यूमुलेट होता है, उसको निकालना है, उसको किसी के साथ शेयर करना है कि हाउ शी और ही फील्स। तो बी अ गुड लिसनर। और उसकी बात खत्म हो जाए ना, उसके बाद उसको सिर्फ उसको वो एडवाइस दो जो वो सुनना चाहता है, जो उसको एक्चुअली पता है। डोंट बी अ सुप्रीम। उसको वही एडवाइस दो कि यार इट्स ओके, इट इज ओके टू फील दैट वे। डोंट बी अ जजमेंटल कि यार तू तो वीक है, तू ओवर थिंक कर रहा है, या फिर तू तो ओवर स्ट्रेच कर रहा है छोटी छोटी बातें को। डोंट डू थिंग। डोंट बी अ जजमेंटल, बी अ सपोर्टिव पर्सन। उसको अच्छे से सुनो। और अगर आपको लग रहा है कि दैट पर्सन इज ट्रिगरिंग कंटिन्यू दैट थिंग, उसको काफी कंटिन्यू लंबे समय तक ट्रिगर कर रहा है, तो डोंट बी शेमफुल। उसको कन्विंस करो कि नहीं यार, चलो हम दोनों मिलके ये डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिक के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं। और देर इज, अगर आप जितना डिप्रेशन है ना अभी, इट इज अ वेरी कॉमन डिप्रेशन, जितना आप उसको शेयर करोगे ना उतना आपसे कम होगा। कभी कभी क्या होता है, बात अगर शेयर कर दो ना तो भी आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, हाँ चलो हाँ, ठीक है, जो बिल्कुल. होगा वो देखा जाएगा। So Yes. just be a good listener and be supportive for your surroundings, for your patients, especially therapist के लिए, for your patients, and for a normal human, like for a general people, I will say कि just be a supportive and be a good listener. When someone is coming to you, na, just be a good listener. That will decrease the 50 to 60% stress from their life. Right. So Thank you. yeah, Please. जी Thank you so much, ma'am. That was really a जी wonderful session. मुझे बिल्कुल लग रहा है जैसे कि कमेंट्स और फीडबैक्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स जी में. So there has really been a very helpful session for a lot of physios जी also in terms of जी how to establish communication with their own patients जी and how to combat mental health issues at a very primary grassroots level. So thank जी you so much for taking out time from your busy schedule and enlightening all of us. Thanks a lot, ma'am. जी. Looking forward to have more of such sessions with you. Sure, sure, sure. And thank you very much, Himanshu, and thank you very much, Jaipur Rehab team, for inviting me. And I would like, अगर किसी को एक दो लोगों को भी like मेरी बातों से कुछ ना कुछ फर्क हो रहा है, then I will be very grateful for this Really, session, and I will look forward for you for many more sessions. Yes, sure, thank ma'am. you very Thank, much. thanks a lot, ma'am. Thank Have a you very nice much. one. Thank All you. right. Thank you so much to all our listeners for staying here till so long. And please, you can watch this video again after it will be available on YouTube. Thank you so much.